seek your permission to start the program for this evening. They say that the anthem of a college is where the heart and the thought and the soul of the college lies. So we, the Josephites, would request all the August gathering to kindly stand up as we begin the evening's program with the college anthem. For St. Joseph, our patron, we stand, united in both hand and hand. Our lips shall always speak of His praise, our minds and hearts to Him we raise. In praise of our college we sing, as the glad oaths and the praise, since you have shown the way to victory, our motto then shall always be, set first the sun, our alma mater, set first the sun, always in high, set first the sun, our alma mater, set first the sun, always in high. St. Joseph, our patron we pray, teach us to labor day by day, our blessing give and courage bring you, to keep our covenant ever true. In praise of our college we sing, as the glad oaths and the praise, since you have shown the way to victory, our motto then shall always be, set first the sun, our alma mater, set first the sun, always in high, set first the sun, our alma mater, set first the sun, always in high. Let us unite, all Joseph fight, let us not strive for greater height. Our truth and peace, our guiding star, will lead us on to happy hours. In praise of our college we sing, as the glad oaths and the praise, since you have shown the way to victory, our motto then shall always be, set first the sun, our alma mater, set first the sun, always in high, set first the sun, our alma mater, set first the sun, always in high. Let's put our hands together for St. Joseph's College. Ladies and gentlemen, please have your seats. This evening, my dear ladies and gentlemen, we have been praying, preparing, planning, working hard to get this August gathering together. बड़ी मेहनत लगी साहब, बड़े फोन कॉल्स करने पड़े, खुशनसीबी है हमारी, आप लोगों के दर्शन हमको मिल गए। शुक्रगुजार हैं उस ऊपर वाले का जिसने हमें सिंधु की जमीन पर रखा कि 1995 में जब इस महाविद्यालय इस कॉलेज के प्रांगण को हमने छोड़ा और आज 2024 आ गई, करीब करीब 30 साल गुजर रहे हैं। आज भी आप लोगों को देखते हैं तो दिल में वैसी ही हलचल होती है, दिल में वैसी ही घबराहट होती है। जोएल सर का नाम सुन लेते थे, अब्बास सर का नाम सुन लेते थे, शिवाजी सर का नाम सुन लेते थे, रास्ते बदल जाते थे हम लोगों के। इन वरांडों में हमें पता था सर किधर से आएंगे, किधर से हमको निकलना है। और आज भी सर जब आप लोगों को देखते हैं वैसा ही प्यार, वैसी ही इज्जत, हमारा दिल आज भरा हुआ है। And we, the Josephites, are absolutely thrilled to see all of you this evening. We are also happy because not just the Josephites,
but our families are also here this evening. We were working hard to make this a family gathering. और हम बहुत खुश हैं कि हमें से बहुत से जोसेफाइट्स के परिवार यहाँ पर हैं, हमारी पत्नियाँ यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरे दोनों बेटे यहाँ पर खड़े हुए थे, दोनों जोसेफाइट्स हैं, एक 12th में एक 9th में है। बड़े हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, बड़े गौरव की बात है कि हम अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स का आशीर्वाद जिस तरह से हमें मिला है हमारी पत्नियों को, हमारे बच्चों को भी मिले, ताकि जैसे आपके आशीर्वाद से हम जीवन में आगे बढ़ पाए हैं, हमारे परिवार भी आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हो गए। समय होगा कि हम आज अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे और I will request the honorable guests as I take your names to kindly come forward onto the stage so that we'll be able to welcome one by one. I want to begin this evening with welcoming our honorable bishop, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय most Bishop Reverend Luis Mascarenhas, रोमन कैथोलिक चर्च के इलाहाबाद प्रांत के धर्माध्यक्ष। मैं चाहूँगा रितेश भैया सामने आ जाए मेहरबानी से। और हमारे लिए बड़े आदर की बात है बिशप साहब, आप हमारे मध्य में हैं। And I will request Mr. Harvinder Pal Singh of the 1971 batch to kindly come forward and welcome the most honorable Bishop Most Reverend Luis Mascarenhas। मैं चाहूँगा Mr. Harvinder, हमारे लिए गौरव की बात है, ये all batches reunion है। मैं चाहूँगा कि तालियां बजती रहें, चौकट बनी सुनाई देती रहे। हम अपने बिशप साहब का स्वागत करेंगे और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पास Thank you very much, Bishop Sahab. I will now request the Honorable Principal of St. Joseph's College, Reverend Father Thomas Kumar, to kindly come forward onto the stage, and I will request Dr. Rajiv Agrawal of the 1973 batch to kindly come forward and welcome the Honorable Principal. I request Dr. Rajiv Agrawal Sahab of the 1973 batch to present a shawl and a memento on behalf of the Joseph Lights. Thank you very much, Father, for allowing us to host this event, and thank you also very much for providing us all that was required to organize this evening's function. साथ ही साथ मैं हमारे मध्य में स्वागत करना चाहता हूँ सेंट जोसेफ्स कॉलेज के हेडमास्टर रेवरेंड फादर मेल्विस पायस का। बेबी प्लीज कम फादर प्लीज कम। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर वाई उस्मानी साहब 1973 बैच के सर मेहरबानी से सामने आकर के और शॉल द्वारा और मोमेंटो द्वारा हमारे हेडमास्टर साहब का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहें। मैं बार-बार निवेदन करूँगा सभी की गिनती में तालियां बजती रहें और अपने शिक्षक का स्वागत कर रहे हैं हेडमास्टर रेवरेंड फादर मेल्विस पायस on behalf of all the Josephites. Thank you very much. हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि न सिर्फ हमारे आदरणीय बिशप साहब, न सिर्फ हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब हमारे मध्य में हैं, लेकिन हमारे टीचर्स हमारे मध्य में हैं, हमारे शिक्षक हमारे मध्य में हैं और हम आपका भी हृदय की गहराई से बड़ी गर्मजोशी से हम स्वागत करना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा अब्बास सर जब कॉलेज कैंपस में घुसे वैसी ही वीडियो में उनको फिर से दे दिया जैसे सभी वीडियो में लगा करती थी। तालियां जोरदार करती हैं कितनों ने अब्बास सर से बात करी है और वो पहली बार प्रिंसिपल जानते हैं। तालियां बजती हैं। मैं दरखास्त करूँगा गौरव महाजन of the 1993 बैच to kindly come forward। सर जल्दी से आ जाइए और हम लोग शॉल द्वारा और मोमेंटो द्वारा अब्बास सर का हम अपने मत में स्वागत करेंगे।
Thank you very much, sir. Thank you very much. हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे मध्य में मिस्टर शिवाजी श्रीवास्तव सर का। जोरदार तालियों के साथ हम शिवाजी सर का स्वागत करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा सतविंदर सिंह of the 1995 batch, Satvinder Singh of the 1995 batch to kindly come forward and welcome Shivaji Srivastava sir with a shawl and a memento. जल्दी से सामने आ जाइए। जोरदार तालियों के साथ शिवाजी सर का स्वागत करते हैं। Thank you very much, sir. Next, we would like to welcome amongst us Mr. P.K. Joel sir. Joel sir का रौला, उनका रुतबा, उनकी आवाज और वो खनक आज भी वैसी ही है जैसे शुरू हुआ करते थे। जोरदार तालियों के साथ हम मंच को स्वागत करेंगे मिस्टर P.K. Joel सर का। हम चाहेंगे कि अनूप त्रिपाठी का लिखा फॉरवर्ड प्लीज कम और अनूप से रिक्वेस्ट है कि शॉल देकर के और मोमेंटो लेकर के हम जोएल सर का स्वागत करेंगे। Next we would like to welcome Madam Yasmin Sultana Nagoi. मैडम से निवेदन है कि वो सामने मंच पर आ जाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित रॉय से of the 1995 batch to kindly come forward and welcome Madam Yasmin with a shawl and a memento. जोरदार तालियां बजती रहे मैम यास्मीन के लिए। Thank you very much, ma'am, for gracing the occasion. Last but not the least, हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं कि हमारे मध्य में मैम प्रतिभा भारद्वाज उपस्थित हैं और हम प्रतिभा भारद्वाज उपस्थित हैं। और मैं मैम अगर आपके लिए दिक्कत हो पाने में तो आप पीछे ही रहें। We will organize the welcome right where you are. मैं रिक्वेस्ट करूँगा राहुल बसीन से, राहुल बसीन of the 99 राजा इधर आ जाओ। थैंक यू सर। हम जोसेफाइट्स के लिए बहुत ही गॉट प्रायोरिटी टू जोसेफाइट्स काफी कुछ सुधार हुआ होगा आई एम श्योर। सो लेडीज एंड चिल्ड्रन वी वेलकम यू इन दिस इवनिंग्स फंक्शन। मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रेस एंड मीडिया से जो हमारे बंधु यहाँ पर हैं एंड लेडीज एंड जेंटलमैन वी वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय बिशप साहब से सामने आकर के दो शब्द आशीर्वचन की बोल करके हम सबको अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अपने आदरणीय बिशप some old boys came to see me. I was thinking maybe they are not for some admissions. You know, when you are sitting in the office, when the old boys come and meet me, most often it happens that they have come for admission either in St. Joseph's or St. Mary's. It's a very good thing. But that day when he came and told me that they are going to organize old boys gathering, a meeting, I was just thinking, I was confused. Normally at this time we never had, I think, I don't remember any time in the month of May, we never had this kind of gathering. Yeah. So I thought, in fact, I am supposed to be in Kanpur this evening, and tomorrow I am supposed to officiate one of the big functions there in St. Joseph's, Chakeri.
So I told the sisters and fathers there that I got a bigger program than what we are going to have. So I cannot appreciate it. Because quite often, even last 2-3 years I have been seeing, number of times you have come and called me, but somehow there I was held up either in Solpat or in Sultanpur or in Kanpur or out of the city. But then this is the time where I should make up and meet you all, and I'm very happy to be with you this evening. One, I feel it is a concern. So the concern is, I have come across some other groups also from, they call themselves OB, Old Boys Association. So I think, I find some of you are quite senior. I think we should come together. I was recently in Bangalore St. Joseph's. I went and met the principal, Father Joe. Then he gave me a room at the 3rd floor. It was the 3rd floor. And he told me, this entire block is dedicated to our old boys. You know, I was really thrilled to see. Then I said I would like to see the entire block. It was 3-story building, and I was in 2nd floor. Now, first and second. And every room, there is a name written. Then I went to all those rooms and saw well equipped. I think even the old boys, when they want to relax and something like that, they go to Bangalore and they remain not only 1 day, 2 days, 3 days. And this is what they have continued their legacy and their attachment to the college, the school. I'm not saying that you should put up a building, I'm not saying that. But what I'm trying to tell you is, we must be united once again. We have the legacy of 140 years. 140 years. Even if you take, say, about 10 students from each batch, you have a huge number. So it is good to come together, the gathering like these. But at the same time, we must make something tangible where we can see that your legacy is still existing. Along with this gathering, it's very good. Otherwise, we should take up some projects. We should come together for some social work. As some of the old boys that come last time, they came and told me the blood donation camp they had. Very similar kind of things. We must do some programs and pay back to our alma mater with this kind of programs. I'm not going to give you a big sermon. I would want you to be relaxing this evening and meet each other. And also you can think of the future gatherings and also future programs. I would also like to tell you that this school, I have that long back. I was here for 9 years. I went to a number of places. I went to Raebareli, I went to other places. But there is no college, a school like St. Joseph's College. I was in Raebareli, they are equally good. Number also is very good. But then there is no that kind of affiliation. They study and go, they're good students, very brilliant students we have. But the kind of attachment that I see here in this college, it is a legacy, I must say. It is a legacy, it's a tradition that we must keep up this tradition. With this, I bless you. A word about my consecration. Many people ask me a number of times, please speak about it. So you know what happened? After Bishop Rafi left this place, I was his Vicar General for 7 years. But then you know, according to the canon law, when a bishop is transferred from one diocese, the diocese becomes vacant and Vicar General becomes no one. He doesn't exist. So I thought my responsibility is over.
Then the time came for election of the administrator. So again, the chit fell on me. So once again, I was made the administrator. What much surprised me, that was on May 30th, one more month to go, May 30th, I got a call from Rome. First I thought it must be a fraud call, nowadays they say we should not pick up an international call. However, I picked up and they asked me to leave immediately Allahabad and go to Delhi. When I went to Delhi, the nuncio, the Pope's representative, he told me that you are going to become the Bishop of Allahabad. So this is what happened. There was nothing of that, nothing was told before to anyone. This is the way God has given me one more big responsibility. I was doing His work. I take it as God's command, His responsibility, and I have been doing this for the last almost seven months. And I promise that I do my level best to bring about change in education. That is very important. And most of our Roman Catholic Diocese of Allahabad, we have a number of schools in 13 districts. The remote schools are also to be brought back again to the same glory. St. Joseph's, no doubt, we have been getting good principals and we have been continuing. But the remote areas, the rural areas, still we need to work. And this is my promise, and I have been praying that God may give me strength and courage and above all wisdom and good health. For this, I pray that all of you are with me. I remember you in my prayers and especially pray for this beautiful gathering. Enjoy and have a nice time. God bless you. May I request Dr. Pranay? Pranay Bhushan, please come forward, and we will thank our Honorable Bishop by giving him a bouquet of flowers. May I now invite and request our Honorable Principal, Reverend Father Thomas Kumar, to kindly come forward onto the stage and say a few words of blessings to all the Josephites and the families. Your Excellency, Most Reverend Dr. Louis Vasconcelos, Bishop of Roman Catholic Diocese of Allahabad, respected and esteemed teachers, and the golden treasures of St. Joseph's College, Prayagraj, that is the alumni. Warm good evening to all of you. After Bishop's speech, I feel uncomfortable to speak because he has blessed all of us. But one thing I like to assure you, wherever and whenever there have been alumni gathering in the past, I've seen a lot of energy and enthusiasm, recollection of all the past glory and nostalgic memories, fun and games, and above all, what used to touch me was your gratitude to the former teachers and to the college, which always assured me, though you were there in St. Joseph's for 12 to 14 years, but St. Joseph is in you for the rest of the years, 30, 40 years. And whenever you come inside the college, it's an inspiration for our students, for our teachers. And every achievement of yours, wherever you are, whatever you do, every achievement of yours is a celebration for our students, for our teachers. We announce it in the assembly and we celebrate because the relationship between you and the college continues not only in you, in us as well.
So feel at home. I extend warm welcome to your families as well, because you all make what St. Joseph is today. Therefore, continue your good works. Have a wonderful evening. Keep growing and keep going. God bless you. Stay back and may request Umar sir to kindly come forward onto the stage. We will thank and appreciate Reverend Father Thomas Kumar by giving him the bouquet of flowers. Thank you very much. Thank you very much, Father. It goes without saying, what we are today and what we will ever be in our lives, we owe it to St. Joseph's College. Amongst the Josephites this evening, we have advocates, we have doctors, we have engineers, we have professors, we have former Indian administrative officers, we have sitting judges of the Honorable High Court and Supreme Court. We have a wide spectrum that St. Joseph's College has offered to its students. And sir, ma'am, इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि जो भी हम हैं आपकी बदौलत है, आपकी वजह से। और इसलिए हमारे दिल और हमारे जहन सेंट जोसेफ से हमेशा भरे रहेंगे। हम इस परिसर से बाहर गए, ये परिसर न कभी गया न कभी जाएगा, हमारे दिलों में है, हमारे दिलों में हमेशा है। Sir, for this evening, let me tell you that we have Josephites who have come just for this function, from not only from other states but from other cities as well. And we have Amit Alok Awasthi in the 95 batch. He's coming from Mumbai. Let's put our hands together for our very own Amit Alok Awasthi. Guys, जोरदार ताली बजाइए। Josephites are coming. Amit comes and he will present a song for all of us this evening. I have just been reminded that we have Josephites coming in not only from within India, but even from outside India. We have Anup, the party of the 95 batch. Anup bhai is in the US at the moment and he is here attending this function here. Anup, आपको देख करके बात नहीं बहुत खुशी हो रही है. Let's all put our hands together for Amit Alok Awasthi, even as he sings his song. Thank you.
जोरदार ताली हो भाई, मेरा भाई आलोक मुंबई से, खूबसूरत। Yeah, we will have one more later on. May I now invite Samanyu of class 5D and Satya of class 2E, boys of Shitanshu Shukla of the 2008 batch. मेहरबानी से सामने आइए. We will have these two young Josephites come and perform on stage for us. Let's put our hands together for Samanyu and Satya. We'll be presenting in शायरी. So अजीत भाई अगर आप यहाँ पर हैं तो तैयार रहिए. We have two amazing performers on stage. Ladies and gentlemen, your attention please. जोरदार तालियां और समझिए. I am just I think जस्टिन ने बहुत अच्छा कहा कि हमारा दिल भरा हुआ है और मेरा और भी ज़्यादा. मैं तो कितना संयोग अच्छा था कि I got to attend this. मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि मेरा स्कूल से तो जो बहुत गहरा नाता था, लेकिन हिंदी साहित्य समिति से बहुत नाता था मैं थी. और मुझसे दोस्तों ने कहा कि कुछ कविता सुनाओ या उससे भी बेहतर कुछ शायरी सुनाओ. तो हमने कहा कि भाई ठीक है, कोशिश करते हैं. क्योंकि जैसा कि हम लोग कह रहे थे ना, यू कैन टेक पीपल आउट ऑफ एसएससी, यू कैन टेक पीपल आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नॉट टेक एसएससी आउट ऑफ देयर, यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ देयर. और पोइट्री का तो मेरा नाता ऐसा है कि मुझे लगता है कि पोइट्री इज द मोस्ट पोटेंट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. और आई थिंक पोइट्री इस तरह से हमारी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज को भी स्ट्रेच करती है. ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई और विधा है. तो मैं कोशिश करता हूँ दो तीन शेर सुनाता हूँ और आपको पसंद आएंगे तो एक और सुना देंगे. और यही मेरा प्रयास है. तो ये बात सुनिए, हम लोग यहाँ जब मिल रहे हैं तो बिल्कुल जैसे कि 95, 92, 93 में थे. तो ये जॉन एलियट का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है. आप लोग सुनिए और अगर समझ में आएगा तो जोरदार ताली बजाइएगा. शेर ऐसे है कि देखिए, हम सब तो बड़े हो गए, बूढ़े हो रहे हैं, माथे पे बल आ रहा है, बाल से चढ़ रहे हैं.
साल का साल और एक लम्हा। सुनिएगा विकास भाई, साल का साल और एक लम्हा, कोई भी तो इनमें न बल आया। साल का साल और एक लम्हा, इनमें कोई भी तो न बल आया। खुद ही एक दर्द पे मैंने दस्तक दी, खुद ही का समय निकल आया। खुद ही एक दर्द पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का समय निकल आया। इसके बाद एक शेर फिराक साहब, फिराक आपको पता है इलाहाबाद के ही अजीम शायर थे और उनका ये उनकी नजर में शेर सुनाने थे कि बंदगी से कभी नहीं मिलती, बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती। भाई सुन लो कि बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती। लेने से तख्त व ताज मिलते हैं, मांगे से भीख भी नहीं मिलती, मांगे से भीख भी नहीं मिलती। एक दुनिया है मेरी नजरों में, पर दुनिया कहीं नहीं मिलती। और कुछ तो बात है दारी फनी में जो कि जन्नत में भी नहीं मिलती। और ये शेर सुनिए कि जब तक ऊंची न हो ज़मीन की लौ, जब तक ऊंची न हो ज़मीन की लौ, आँख को रोशनी नहीं मिलती। और इसका आखिरी शेर फिराक का मुद्दा है कि है वो भरपूर जिंदगी फिराक, है वो भरपूर जिंदगी फिराक जिसमें आसूदगी नहीं मिलती, संतुष्टि। हमारे कहते हैं ना कि संतुष्ट रहो, लेकिन फिराक कहते हैं कि जिंदगी तब तक है जब तक आप संतुष्ट नहीं, कि है वो भरपूर जिंदगी फिराक जिसमें आसूदगी नहीं मिलती। आपने अच्छा सुना। एक शेर और मेरे फेवरेट शायर वसीम बरेली साहब, जिनके साथ मेरा बहुत सालों का ताल्लुक था, है, मिलते हैं अभी दिसंबर में, मैं मुलाकात हुई। तो उनका ये शेर है और ये मूवी अभी आई थी पठान, उसमें भी इसके कुछ शेर यूज किए गए। तो उसका एक तो शेर सुना करके तो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। और कुछ शेर ऐसे हैं कि उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर अगर आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, खुद मुख्तारियाँ लेते अपने आप से बेटे लेना, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सैनिका शाखों का लचक, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सभी का मन शाखों का लचक जाना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि सलीका ही नहीं आता उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं आता उसे महसूस करने का, जो कहता है कि घर खुला है तो नजर आना जरूरी है, जो कहता है कि खुला है तो नजर आना जरूरी है, उसूलों पर जहाँ जाए। थैंक यू वेरी मच। I love being with you here। और मैं जो कि यूएस से आया हूँ, वहाँ पे आज का दिन बड़ा खास है। जो लोग स्टार वॉर्स के फैन हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे लाइन होती है कि मे द फोर्स बी विद यू, और आज मे द फोर्थ है, कहते हैं मे द फोर्स बी विद यू। तो बेसिकली आई विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट एंड मे द फोर्स बी विद यू। थैंक यू। जोरदार तालियां दो अनूप त्रिपाठी के लिए। और थोड़े समय में जो आप कहना चाहते हैं जल्दी से अपनी बात कहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने शाम के कल्चरल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे 2010 में कोई कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं
एवरीवन, मेरा नाम शशांक पटेल है। मुझे 2009 में न्यूरोफाइब्रोमा ब्रेन कैंसर हुआ था। वो 2 टाइम्स मतलब 2 बार बीमारी वापस आ गई, जो ब्रेन कैंसर है। फिर क्या हुआ कि जो बीमारी वापस आई तो मेरे बहुत लोगों ने बोला था कि बीमारी वापस आ गई, अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने बहुत ईश्वर से प्रार्थना की, तब मैं सर्वाइव कर गया। फिर मैंने निर्णय लिया, मुझे बचपन में मतलब बहुत था कि मैं आर्मी के लिए सेवा करूंगा, देश के लिए सेवा करना चाहता था, लेकिन कहीं मेरी मेजर सर्जरी हुई थी तो उसके कारण यह संभव हुआ। तब फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए कार्य करूंगा। तो हमारी संस्था कैनकिड्स किड्स स्कैन है, जो 0 से 19 साल तक के बच्चों के लिए पूरे भारत में अभी तक कार्य कर रही है, जिसमें हम लोग 140 सेंटर्स में काम कर रहे हैं। हर तरीके के बच्चों को हम लोग मदद दे रहे हैं, जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और जो मेडिकल सपोर्ट है, हर तरीके की हेल्प दे रहे हैं। फिर मैंने उसका जो भी हमारा पूरा ग्रुप है, हमको हॉस्पिटल में जिस चीज़ की नीड होती है हम लोग वो पूरा करते हैं। मैं कैपिटल संस्था में अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि जैसे मैंने कैंसर से मैं ठीक होकर आया हूँ, तो ऐसे हमारे बहुत बच्चे हैं जो आज कैंसर से जंग लड़ रहे हैं, तो उनके सहयोग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मतलब कभी कभी होता है गवर्नमेंट फंड को प्रोसेस होने में बहुत समय लग जाता है, तो उस दौरान क्योंकि जिस एनजीओ को मैम बनाया था वो हमारी पूनम मैम ने बनाया था, और वो पूनम मैम खुद इस हमारे जो मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर हैं, उन्हीं के IAS बैच के साथ की थी मैम। तो मैम ने मतलब एक चटाई से स्टार्ट किया था संस्था को, मैम ने चटाई से एम्स में स्टार्ट किया था। आज हम लोग पूरे भारत में 141 सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल्स में कभी मतलब कभी कोई प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर कभी नर्सिंग स्टाफ नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ हमारी सपोर्ट टीम काम करती है। तो बाकी जो हमारा हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश का एक हेल्पलाइन नंबर है, उसको सुगंधा देख रहे हैं। आज किसी भी बच्चों को जैसे कैंसर डायग्नोसिस हुआ है तो उस नंबर पे सीधे कॉल करना है, तो मतलब बच्चे को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तुरंत वहाँ जाएगा और तुरंत वहाँ पे मतलब एडमिट हो जाएगा। जैसे मैं वहाँ पे मैं KGMO में कार्यरत हूँ, तो मैं KGMO का जो भी पेशेंट जाता है उसका हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आता है, तो KGMO में मैं KGMO SGPGI RMR रामनगर लोहिया ऐसे सुगंधा वो पूरे स्टेट में जितने भी मतलब हमारे जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं यूपी में पूरा देख रही है। तो किसी भी बच्चे में अगर कैंसर होता है तो आप हमारे उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर है जो भारत उस पर लगा हुआ है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और बाकी मेरा आप सभी से गुजारिश है कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनके सहयोग के लिए आप भी कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बारे में QR कोड उसके माध्यम से कर सकते हैं। वैसे आज मैं सर्वाइव हुआ हूँ, तो ऐसे आपको भी हेल्प करने की कोशिश करें सभी बच्चों का। धन्यवाद। Thank you very much, representatives of the Cancer Survivors Association। तो मैं ज़रूर से चाहूँगा कि ये एक भयंकर बीमारी है, इसके प्रति हम जागरूक रहें और अपने घर से जो कुछ भी हम कर सकते हैं ज़रूर से उसको हम करें। Do we have शशांक सिंघल here? शशांक सिंघल नेम इज नेम फॉर स्टैंड अप कॉमेडी। अगर यहाँ पर है तो ज़रूर से आ जाए, और अगर नहीं है तो मैं बुलाना चाहूँगा अनस इजहार ऑफ द 2008 बैच। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अनस का, और मैं चाहूँगा कि अनस आ करके और अपना प्रेजेंटेशन करें ऑफ द 2008 बैच। इसके बाद जो हमारे टीचर्स यहाँ पर हैं, सर अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो शब्द आपके पास जरूर से मौका होगा। Check, 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 check. A very good evening to everyone. A very good evening to Honorable Bishop, Honorable Father, respected teacher, my dear seniors and friends. And a very special thanks to the organizing committee who have put so much of effort for this event. वेल आज के लिए मेरे पास 10 मिनट है इस स्टेज पर, और क्या आप जानते हैं ये 10 मिनट क्या है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, ये 10 मिनट क्या है? ये 10 मिनट अगर आप मुझे दिल लगाकर सुनेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको आपके बचपन में लेके जाऊंगा और कुछ बहुत खूबसूरत यादों को ताज़ा करने की मदद करूंगा। ये खूबसूरत शाम और उस पर खूबसूरत लोग।
कमाल की बात यह है कि कंफ्यूजन बड़ा ये है कि मैं शायरी सुनाऊँ आप लोगों को कि आपने शायरी देखो, मेरे लिए समझ नहीं आता। ऑडियंस से 10 मिनट की तवज्जो दरख्वास्त है। मे आई हैव योर अटेंशन ऑडियंस? आर यू अप फॉर सम शायरी? एनीवन फॉर पोएट्री? तो चलिए फिर एक बड़ी खूबसूरत एहसास की बात करते हैं। मैं आपके दिल के उस तार को छेड़ना चाहता हूँ जहाँ आप सालों पहले किसी से अगर नजरें मिली तो उसकी याद आए। और इसको करने से पहले यहाँ बैठी सभी भाभियों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे माफ़ करें। एक शेर समाप्त करें। न जाने वो नजरों से कौन सी दवाई देती है, न जाने वो नजरों से कौन सी दवाई देती है। अब उसकी खुशबू सुनाई और आवाज दिखाई देती है, उसकी खुशबू सुनाई और आवाज दिखाई देती है। अब अगर आप लोगों को इजाजत हो तो इसी सिलसिले में एक गजल का बदला और चंद शेर बना सकते हैं। मैं भी समझ गया ये मेरा रब समझ गया, मैं भी समझ गया ये मेरा रब समझ गया। कहते हैं किसको इश्क मैं ये अब समझ गया, कहते हैं किसको इश्क मैं ये अब समझ गया। मत झूठ बोल मुझसे यकीन मत दिला मुझे, तू किससे मिल के लौटा है मैं सब समझ गया, तू किससे मिल के लौटा है मैं सब समझ गया। और एक गजल का बदला चंद शेर और हाजिर कर रहे हैं आप लोगों के आगे। मुझे जख्म तूने दिए तो हैं मगर इसकी तुझको खबर नहीं, मुझे जख्म तूने दिए तो हैं मगर इसकी तुझको खबर नहीं। मैं सुनाऊं क्यों तुझे दर्दे दिल जो जरा सा तुझ पे असर नहीं, मैं सुनाऊं क्यों तुझे दर्दे दिल जो जरा सा तुझ पे असर नहीं। मेरा हम सफर तो बिछड़ गया कि चराग सारे ही बुझ गए, मेरा हम सफर तो बिछड़ गया कि चराग सारे ही बुझ गए। कहीं रोशनी का सुराग भी मुझे अब तो आता नजर नहीं, कहीं रोशनी का सुराग भी मुझे अब तो आता नजर नहीं। मैं भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ नहीं मंजिलों का कोई निशान, मैं भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ नहीं मंजिलों का कोई निशान। कि निगाह में कहीं दूर तक कोई दर नहीं कोई घर नहीं, कि निगाह में कहीं दूर तक कोई दर नहीं कोई घर नहीं। कभी अश्क मैंने बहाए थे तेरे नाम लिखे थे गीत में, क्या हुआ किसी के साथ कभी ऐसा? कभी अश्क मैंने बहाए थे तेरे नाम लिखे थे गीत भी, तेरी नज़्र क्यों करूं मैं उन्हें तुझे जबके दर्दे जिगर नहीं, तेरी नज़्र क्यों करूं मैं उन्हें तुझे जबके दर्दे जिगर नहीं। इमरान भाई थोड़ा आगे आके बैठिए। मैं तेरी नज़्र क्यों करूं मैं उन्हें तुझे जबके दर्दे जिगर नहीं। तू वफा पे मेरी यकीन कर के खुदा पे सिर्फ दुआ से, तू वफा पे मेरी यकीन कर के दुआ में सिर्फ खुदा से मैं तुझे मांगता रहा रोज शब, तू मिला ही मुझको मगर नहीं, तुझे मांगता रहा रोज शब तू मिला ही मुझको मगर नहीं। ये इजहार ने तो लबों पे अपने सजाए झूठे कह, ये इजहार ने तो लबों पे अपने सजाए झूठे ही कह रहे। ये न रोया हो तेरी याद में कोई ऐसी शाम सहर, ये न रोया हो तेरी याद में कोई ऐसी शाम सहर नहीं। आप लोगों की अगर इजाजत हो, अगर ऑडियंस साथ देना चाहे और मजीद सुनना चाहे तो प्लीज ऑडियंस ये बताए कि वो सुनना चाहती है। देखिए फिर ऐसा होता है कि कई बार हम जब स्कूल से निकलते हैं और एक नई जिंदगी कॉलेज की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ हमारे ज़िंदगी में ऐसी खलबली होती है कि पुरानी चीज़ें बहुत पुरानी भी नहीं होती हैं, उनमें वक्त की गर्द भी नहीं जमा होती है और कुछ नए सिलसिले ज़िंदगी में शुरू होने जा रहे होते हैं। तो इसी सिलसिले पे गज़ल में कुछ ये कर फिर उसी जगह वो तुम्हारा जो
घर फिर उसी जगह वो तुम्हारा जो आ मिले, जीने का जिंदगी को बहाना नया मिले। घर फिर उसी जगह वो तुम्हारा जो आ मिले, जीने का जिंदगी को बहाना नया मिले। जब भी कलम उठाऊं तेरा नाम बस लिखूं, जब भी कलम उठाऊं तेरा नाम बस लिखूं। मेरी कलम को रब की कुछ ऐसी अता करे, मेरी कलम को रब की कुछ ऐसी अता करे। तू मेरी दुश्मनी को भी तरसे तमाम, तू मेरी दुश्मनी को भी तरसे तमाम उम्र। तुझको तेरी जफा का बस यही सिला मिले, तुझको तेरी जफा का बस यही सिला मिले। जितने पुराने जख्म थे सब भर चले हैं, जितने पुराने जख्म थे सब भर चले हैं। अब ख्वाहिश है जख्म फिर कोई मुझको नया मिले, ख्वाहिश है जख्म मुझको फिर कोई नया मिले। ये सोच कर मिला नहीं मैं दोस्तों से, शेर देखिएगा, ये सोच कर मिला नहीं मैं दोस्तों से कल। हमेशा दरिया ही क्यों समंदर से जा मिले, हमेशा दरिया ही क्यों समंदर से जा मिले। आसानियां हुई हैं सफर में इज़हार, आसानियां हुई हैं सफर में इज़हार। फिर अजदाद के जो विरसे में ये नक्श पा मिले, अजदाद के जो विरसे में ये नक्श पा मिले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ऐसी जगह से पढ़े हुए हैं और ऐसे माहौल में पढ़े हुए हैं कि दुनिया में कहीं भी जाते हैं अपनी पहचान छोड़ने में देर नहीं करते। और ये वो जगह है जिसने हमें मांगना नहीं बल्कि जीतना सिखाया है। ये वो जगह है जो हमें टॉप पे जाना बताती है और फिर टॉप पे बने रहना बताती है। ये वो मंदिर है जिसने हमें प्रार्थना का सही अर्थ बताया है। तो दो शेर हर जोसेफाइट की नजर कर रहा हूँ, ये दो शेर आप लोगों के लिए। कमरो शम्स से मांगी न रोशनी मैंने, कमर मतलब चांद, शम्स मतलब सूरज, तो कमरो शम्स से मांगी न रोशनी मैंने। मिटाई जीस्त की जुगनू से तीर की मैंने, मिटाई जीस्त की जुगनू से तीर की मैंने। सबक मिला है मुझे तुझसे जिंदगी जो भी, सबक मिला है मुझे तुझसे जिंदगी जो भी। न पूछ कितनी है कीमत अदा करी मैंने, न पूछ कितनी है कीमत अदा करी मैंने। अब एक इस सिलसिले को यही तमाम करते हुए एक आखिरी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि मैंने अपने आप को कभी भी एक्स जोसेफाइट नहीं माना। मैं जोसेफाइट था, मैं जोसेफाइट हूँ और मैं जोसेफाइट रहूंगा। 3 cheers for St. Joseph's College. Amen. 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 Thank you so much. You have been a wonderful audience. Thank you so much. जोरदार तालियां अनस के लिए, अनस इजहार और 2008 बैच। और इससे पहले कि और लोग आए और अपनी प्रस्तुतियां दें, मैं एक गीत गाना चाहता हूं और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इफ यू वुड बेयर विद मी फॉर 5 minutes। Okay, how many Mohammed Rafi fans here? How many Mohammed Rafi fans here? जोरदार ताली मोहम्मद रफी जी के लिए। Okay, आमतौर से मैं फिल्मी गीत गाता नहीं हूँ, लेकिन सेंट जोसेफ्स है तो बात ही अलग है।
Thank you very much. You've been an amazing audience. मैं बुलाना चाहूँगा अमित मिश्रा सर। अच्छा, केवल महिलाएं ज़्यादा हैं, बाकी लोग देखिए आप लोगों सेंट जोसेफ वालों को आप जानते नहीं हैं, इतने साल में भी नहीं जान पाए, आप लोग को बैठा के सारे बात तो क्यों गए हैं अब आप ये घर जाके पूछिएगा। वाकई सेंट जोसेफ आके हमेशा ही अच्छा लगता है। और सामने भारद्वाज मैम बैठी हैं, ये हमको 7th में हिंदी पढ़ाती थी और कई बार हम लोग अल्लाहपुर में जब रहते थे कई बार रिक्शा छूट जाता था, बदमाशी करते रहे और छूट जाता, तो अक्सर ये हमें घर तक ले जाके छोड़ के आती। वो भी ऐसे टीचर्स उस समय हम लोगों को मिले। कोई भी आदमी को आगे बढ़ने में और एक स्थान तक पहुंचने में स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी ज़िंदगी में सेंट जोसेफ का बहुत बड़ा हाथ रहा। आई नेवर वेंट टू स्कूल। देखिए अलग अलग तरीके का क्लास होता है स्टूडेंट्स का, तो वो स्टूडेंट्स का कोई बहुत मेरिटोरियस होता है, कोई लेबोरियस होता है। हम उस क्लास में से थे वो नेवर वेंट टू स्कूल। आई वॉज ऑलवेज सेंट टू स्कूल, बेटा तुम जाओ। और प्लस सेंट जोसेफ में मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी करने लगा अलग अलग मंचों पर, अलग अलग चैनल्स पर। तो जब वहाँ पे गया तो ये हम लोग का जो विधा है उसको स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाता है। और स्टैंड अप का भी सेंट जोसेफ का एक बहुत अलग हमारे उसमें जीवन में योगदान रहा है, क्योंकि क्लास में जितना हम खड़े हुए हैं, क्लास में जितना हम खड़े हुए और जितना स्टैंड अप टीचर ने हमको करवाया वो आज हमारी ज़िंदगी में काम है। थोड़ा सा ऊपर से लगता है इनके सारे कूपन्स बढ़ गए हैं तब ये आए हैं अंदर। कूपन सारे बढ़ गए आपके तो कुछ बचे अभी हैं। बिशप हाउस पे किसी की गाड़ी जिसका कि नंबर है UP 70FL 8459, जिसकी भी हो भैया कृपया जाके हटा लें। बिशप को निकलना है और आपने उनका दरवाज़ा घेर रखा है।
UP 70 FL 8459। अब अनाउंसमेंट हुई है तो मैं एक छोटा सा मेरा बहुत पुराना कैरिकेचर है वही सुना देता हूँ। पुराने ज़माने में बड़ी जो रामलीला वगैरह होती थी, वो रामलीला वगैरह गांव में होती थी, उसमें रामलीला कम होती थी और अनाउंसमेंट्स ज़्यादा होती थी। तो पहला सीन वहाँ से उठाता हूँ कि दशरथ जो है वो राम को वनवास दे दिया है। तो उसके बाद दशरथ वहाँ पे अपना डायलॉग बोल रहे हैं और राम वनवास की ओर चल रहे हैं, उन्होंने उनको कह दिया है। अब ये रामलीला कम है और इसमें अनाउंसमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसमें अगर आपको अच्छा लगे तो जो लोग बात कर रहे हैं अगर इधर भी सुन लेंगे तो बहुत आसान होगा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और तालियां बजा दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो पहला सीन वो है कि वहाँ पे राम जी चिल्लाते हैं और राम जी जा रहे हैं और दशरथ चिल्ला रहे हैं, हे राम क्यों मुझको छोड़कर जाते हो, दिल मेरा तोड़े जाते हो, मत जाओ राम मत जाओ। कह के दशरथ जी मर गए। ऑडियंस आप जैसी थी, आवाज आई once more। दशरथ जी फिर खड़े हो गए, फिर वो हे राम तुम मुझको छोड़कर जा। हेलो, एक विशेष सूचना है, देखिए कल्लू की अम्मा जल्दी में अपने घर की जगह पड़ोस के घर में ताला लगा के चली आई हैं। उनसे विशेष निवेदन है, कृपया जाके कल्लू की जगह लल्लू के घर का जहां के दरवाजा खोल दें। तो एक और विशेष सूचना है, यहाँ पे देखिए रावण वध अब से थोड़ी देर बाद होना है। हनुमान नहीं, रावण जी के लंका में आग लगनी है। हनुमान जी किसी को दिखाई दे तो कृपया उसको तुरंत मंच के पीछे पहुंचा दें। हे राम तुम मुझको, अबे हमको बोलने दो यार, बोल देते, रुक जा पहले बता। हाँ, हे राम तुम मुझको छोड़कर। एक और विशेष सूचना है, देखिए यहाँ पे बड़ी समस्या है। अभी पता चला है कि हनुमान जी ने लंका दहन करने से मना कर दिया है। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमको 500 रुपया जो है रावण को वापस करना था। रावण ने कहा है कि अगर तुम अंदर आओगे बेटा लंका में घुसे नहीं कि हम तुमको पल भर बतियाएंगे। तो इसलिए आपसे विशेष सूचना है कि किसी तरह रावण जी को आप संभाल लें, हम जो है रामलीला संभाल लेंगे। एक और विशेष सूचना है, यहाँ पर हमने आरती की थाली जो है वो हमने बुलवाई थी पूरे पंडाल में। जितनी भी 500 की नोट मोदी ने बंद करवाई है, किसी ने पुरानी 500 की नोट वहाँ पर डाल दी है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? ये नोट कमेटी कहाँ पे चलाएगी? एक और विशेष सूचना है, गैया होगा। इतने में लोगों को परेशानी होती है और गांव में आखिरी में क्या होता है? गांव में आखिरी में होती है मारपीट होती है और रामलीला वहां पर समाप्त होती है। अरे वाह, उमर आज दिखाई दिया। हमें ये हुक्म की खिड़कियां न हम खुली रखी, उधर से चाँद निकलता है, क्या किया भाई उमर, आज मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ तो वाकई उसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है और एक शख्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज उमर हसन। इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम अलाइव। मेरे जब प्लॉटिंग मुझे पता चली, पूरा लॉकडाउन था, एंड दिस इज सेंट जोसेफ्स फ्रेटर्निटी। आई वाज द ओनली पेशेंट। He opened the cath lab of Nazareth Hospital just for me कि अमित भैया I am opening this for you. I was the only patient. और ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं खोला, मेरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर उतार है। इसलिए कहना चाहता हूँ सेंट जोसेफ्स का एक अपना अलग ही यहाँ पे अलग अलग टीचर्स की नकल किया करता था। मिस्टर डिक्रूज वेल उस समय जब हमारे कैरिकेचर भी इसी तरह बन जाते थे, स्कूल में नकल करता था। मिसेस भारद्वाज थी, जब ये डांटती थी, तुम लोग बहुत बदमाशी कर रहे हो, एक को मारूंगी अगर पकड़ना, चलो क्लास में। तो इतना आपका सुनना होता था और हम क्लास में भाग जाते थे। नहीं तो ये खड़ी स्केल मारती थी, कभी इन्होंने बैठी स्केल नहीं मारा, हमेशा खड़ी स्केल। और वो उसके बाद वो होता था, मिस्टर डिक्रूज हुआ करते थे, यू जैकएस।
तो एक किस्सा याद आ गया, मिस्टर डिमरी के फादर की डेथ हुई। तो जब डेथ हुई तो कंडोलेंस हुई, तो यही क्वाड्रेंगल में हम लोग खड़े थे, शायद तुमको याद आ गया। We have gathered here to mourn the death of Mr. Dimri. भाई बट्टा चल रहे हैं, मिस्टर डिमरी के फादर भी मिस्टर डिमरी रहे होंगे, और उस कॉन्डोलेंस में, कॉन्डोलेंस की जगह हम सारे हंस रहे थे। Yet I don't think that is a joke. We are here to mourn the death of Mr. Dimri. और जब उन्होंने दोबारा बोला और तेज हंसी। तो सेंट जोसेफ के बड़े अपने अलग अलग किस्से हैं, और अलग अलग। मिस्टर जोएल अभी बाहर चले गए, इनकी क्रीम कलर की शर्ट और इनकी ब्लैक पैंट, इनकी ड्रेसिंग, हमारे यहाँ के टीचर्स उस समय बहुत अच्छी तरह से ड्रेस होके आते थे, आइकन्स हुआ करते थे। मिस्टर मगान वगैरह तो आज भी उसी तरह से उतने ही हैंडसम और उतने ही यहाँ दिखाई देते हैं। हाँ, चलते चलते जिसके लिए मैं फेमस हूँ, ठेठ इलाहाबादी महाभारत सुना देता हूँ और उसके बाद फिर आपसे विदा होगा। कुछ लोगों को बाहर से अंदर बुला लो तब मजा आएगा यार। बाहर से भाई जो बाहर हो कृपया अंदर आ जाइए। तो इलाहाबादी हम लोग सेंट जोसेफ में पढ़े जरूर, इंग्लिश ऑल्सो कम्स टू मी वेरी मच। मिस्टर मोर ने इतनी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ा दी थी और वो हिस्ट्री के क्लास में आते थे। हिस्ट्री इज अ डल सब्जेक्ट, to make it interesting we add spices to make it masaledar. So Aurangzeb was a lunatic, he was a terrorist, all right, but just telling about Aurangzeb, that he killed his father, his brothers, everything. What are you doing? Ben, Mr. Pradhan, संजीव चंदा, पिछली बार हम कहाँ थे सर? हम लोग तो क्लास में ही थे। मैं चैप्टर में पूछ रहा हूँ गधे। तो देखो वाचन प्रेम, वाचन मातृ प्रेम, भाई भाई का प्यार वात्सल्य में नहीं आएगा। भाई भाई का प्यार वात्सल्य में माँ और पुत्र का। सर वो DN शर्मा सर वो 8C में पढ़ाते हैं, मैं 8B में पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस समय 8B पढ़िए और 8C के नोट लेके यहाँ नहीं आएंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। अब वो उस समय हुआ करता था। तो सेंट जोसेफ की अपनी एक अलग बांधी रही है, अलग पिक्चर्स का हो रहा है। तो कुछ लोग हैं, छोटा सा आपको एक ना इलाहाबादी महाभारत मेरी बड़ी फेमस है, लेकिन इलाहाबादी महाभारत हटाइए वो थोड़ा सा रास्टिक हो जाएगा। आजकल हमारे नहीं, आज मैं थोड़ी सी दूसरा सुना देता हूँ। आजकल मैं दो तीन नेताओं की बहुत ज़्यादा जो मेरे वायरल हैं वो वायरल मैं सुना देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुना रहा हूँ मिस्टर खड़गे। भाई मिल लिए और खड़गे जी और प्रियंका गांधी और शिवपाल, ये तीन की सुना। तो सबसे पहले तो खड़गे जी। ये जो आपका प्रधानमंत्री है ये बोलता है 400 पार 400 पार। लोग वोटिंग देने आ रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं, किधर से चार? हमारा स्वर्गीय राहुल जी जो नहीं, राहुल गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी तो कभी कभी गलती से राहुल की जगह राजीव निकल गया तो हम सॉरी। तो जब आप लोगों को वोट देने के लिए बाहर आना, ठीक है? तो I would request like that to please go out and vote on 25th, the day we have voting. प्रियंका एक बात बताइए, आजकल हमारे पति के ऊपर आप लोग हमेशा इल्जाम लगाते हैं। माँ पे तालियां बजाते रहो तो मजा आएगा। मेरे पति को इन्होंने नहीं छोड़ा, मेरे पिता को नहीं छोड़ा, मेरे भाई को नहीं छोड़ा, मेरी माँ को नहीं छोड़ा। अब आप बताइए, अगर हम वापस चुनावी रण में आए तो अगर हम लड़ना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अभी तक नहीं आ रहे थे तो दिक्कत थी, अब आ गए हैं तो दिक्कत है। आपको बुला रहे हैं छोटू।
ये अपना वोटर इकट्ठा करें। और आखिरी में जो सबसे फेमस है वो हमारा वो है शिवपाल यादव। देखिए हमें याद कर हमको तो कोई कहीं बुलाता है, न कोई बुलाता है, न कोई इज्जत देता है, न सम्मान देता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट। अभी उन्होंने एक जगह भाजपा के लिए गए थे सपा का प्रचार करने और वो करा है भाजपा का। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, अरे यार वो गलती से निकल गया, कभी कभी हमारी भी मन की बात सुना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Amit sir. Thank you very much. Round of applause for Amit Mishra sir. जोरदार ताली हो सर. Sir, thank you very much. We are now towards the end of this evening's program और हमारे बीच में सुदीप बैनर्जी सर है of the 1988 बैच और इनको सुबह का समय था, साइकिल स्टैंड पर साइकिल खड़ी ही करी थी और हम लोग सेक्शन होकर आ रहे थे। ओमर भी था, विशाल भी था और मिथुन भी थी। किसी ने बताया कि छुट्टी हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल पहुंचे और ये खबर मिली। किसी ने कहा कि एक सीनियर फादर है उनका निधन हो की जो छोटी होने की खुशी थी वो इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल दौड़ते हुए मैं लौटा वापस साइकिल स्टैंड। मैंने कहा फादर को मैं वहां देख और उतनी खुशी से दौड़ते हुए बाहर निकला and shouting at the top of our voices, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। सामने से फादर स्टैंडिंग, Did you just say फादर वो मर गवा? हम लोगों की हालत खराब हो गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या दिल के अंदर में हिचकोले खा रहे थे। One senior father has just passed away, and I want to see your father tomorrow morning. आप साहब मेरी तो वो जो छुट्टी कैसी गुजरी होगी अब आप सोच ही सकते हैं। मैं घर आया, मैंने कहा कि बाकी नहीं लेकिन बहुत कुछ हो गया। खैर अगले दिन मेरे फादर मेरे स्कूल के फादर से मिलने आए। मेरे पापा ने जो कहा था हेड डाउन करके खड़ा हुआ और उन्होंने मेरे फादर से कहा डॉक्टर जब आँख मन पड़ गई तो बाहर निकले तो मेरे पास मुझसे कहा ये थोड़ा रोक करके नहीं सीख कर पाऊंगा हम नहीं तोड़ेंगे
Thank you. Thank you very much, Sudeep sir. May I request Vibhor sir to kindly come forward and propose the formal vote of thanks और उसके बाद फिर हम लोग नेशनल एंथम के साथ आज शाम के प्रोग्राम को खत्म करेंगे. Vibhor sir. I want to thank the Almighty God for giving us the lives and our families a beautiful opportunity to gather together as an extended family for this all-batch reunion. I would like to take this opportunity to tell you that this event has been in our hearts and minds for a very long time. And finally we could get an opportunity to execute it. First and foremost, we wish to thank Honorable Bishop Most Reverend Louis Mascarenhas, the Bishop of Allahabad of the Roman Catholic Church. Bishop sir, we want to especially thank you for gracing this occasion and making it very, very special for all of us. Your presence is a source of blessing for us. Secondly, we wish to thank Reverend Father Thomas Kumar, the esteemed principal of St. Joseph's College, Allahabad, for allowing us to organize this function here. Ladies and gentlemen, I want you to know this, that without Father, this function would have been happened. We will ever be grateful to you, sir. Thank you so much, Father. We also want to thank Reverend Father Moses Pius, the headmaster of St. Joseph's, Allahabad, for his best wishes to us. Behind the success of any program of this magnitude, there is always a team of committed people who make extraordinary efforts in organizing the event and ensuring that everything falls in place. We want to thank our honorable teachers who took the pain, accepted our humble invitation, and spared their evening for us and graced the occasion by their presence. Sir, ma'am, we want to thank you for teaching us inside the classroom so that we could walk straight in this world. Your contribution in our lives is unparalleled and can never be repaid. Thank you once again. This function belongs to us Josephites, and most of us took all the pains in making this a grand success. However, there was an organizing committee who worked day in and day out in making this function a super success. I want to thank the following active members of the organizing team: Mr. Usmani, Mr. Rajiv Agarwal, Mr. Ritesh Singh, Mr. Akhilesh Tripathi, Mr. Akshat Kapoor, Mr. Satwinder Singh, Mr. Justin Masih, Mr. Rahul Bhasi, Mr. Ankur Goel, Mr. Asif Kamal, Mr. Karan Sachdeva, and Mr. Shubham Singh. These Josephites have actually worked tirelessly to make this evening memorable for all of us.
Mr. Rajiv Agarwal, Mr. Satwinder Singh, Rahul Basi, Ankur Agarwal and Shubham Singh for going out of the way and ensuring that all of us get ourselves registered. I also want to thank Justin Massey. Mr. Massey, I really want to thank you for organizing all the on-stage events and charting out a fabulous and entertaining cultural evening. Thank you, Mr. Massey. I wish to thank Akshat Kapoor and Shubham Singh for managing the funds and keeping a track for the registration of funds. I want to thank the food committee for planning a wonderful meal for all of us. Special thanks to Mr. Anuj Mathur for helping us with the logistics. I want to thank our main sponsors, Abros Shoes, and Crown Services for sponsoring and powering our function. I want to make a special mention for Mr. Ritesh Singh, Dash 1988, for sponsoring all the shawls that were gifted to our guests and invitees. How did you like the invitation cards? Did you like the invitation cards? On-stage backdrop and the memento design. I want to make a special mention of Justin Massey, 1995 batch, for designing and sponsoring the printing of all the mementos for all the invitees and teachers. I want to thank all the support staff of St. Joseph's College for all their help in making today's program successful. Last but not the least, I also want to thank you, audience. Without your presence, our support, and this program would have couldn't happen. Earlier, you have made it very successful, Dr. Satish. Your presence has really made us wow. Are we full? Are we ready for? Can we ask people to come and join us for the national anthem? Thank you. Shall we all stand up for the national anthem as we conclude this evening's program?